Assalamu alaikum. Uh, in the last classes, we had seen how to take a sample presentation and how to change the color, how to change the theme of the presentation. Now, today we'll just see the views which are available in presentation, and inshallah today we'll complete the chapter also. So, the first we'll start through the normal view. It is the main editing view which is used to write and design the presentation. In normal view, you can add text, graphics, sound, animation and other effects to your slides. As well as have a larger view of an individual slide's notes pane at the bottom and outline of the slide text, outline tab and slide displayed as thumbnail, slide tab all at the same time. I'll open here PowerPoint now. Currently we are in the normal view itself where we can see the full view of our slide. यहाँ पर हम हमारी सारी स्लाइड का व्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं और सारे जो स्लाइड्स है उसको यहाँ से हम आउटलाइन के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर है नॉर्मल व्यू, यहाँ से हम व्यूज़ को चेंज करेंगे। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड रीडिंग व्यू। ये नॉर्मल व्यू में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमें एडिट करना है या डिलीट करना है या ऐड करना है, जो भी चीज़ें करना है वी कैन डू इन नॉर्मल व्यू इजीली। Now slide sorter view, it display a miniature view of all slides in the presentation. In slide sorter view, you can change the order of the slides, insert or delete the slides and transition and set the timings for the slide show. Select the view tab and click on the slide sorter button. View tab पर जाना है, then now पहले slide sorter button, you can also click on this icon also, slide sorter view। तो यहाँ से क्लिक करते हैं अंडर व्यू टैब इन प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप स्लाइड सॉर्टर। यहाँ से आप इसको अगर डिलीट करना है किसी प्रेजेंटेशन को तो यू कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल आई विल डिलीट दिस स्लाइड नंबर 6, जस्ट राइट क्लिक and delete the slide. Okay, in this way okay, you can delete the slide also. You will see all slides of your presentation in thick border around the selected slide। जो भी आपकी स्लाइड सेलेक्टेड रहेगी उसके ये अराउंड में ऐसे बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, राइट ना एक हमने स्लाइड यहाँ पर डिलीट की है और यहाँ पर अब स्लाइड बचे हैं 5 स्लाइड्स आर रिमेन इन आवर प्रेजेंटेशन। नाउ notes page view. Notes page view is available on the view tab. If you add a notes while working in normal view, you can see them in notes page view. It display an image of the selected slides along with the notes related to that slide। एक और एक व्यू है यहाँ पर नोट्स पेज व्यू। अगर हमने नॉर्मल ये स्लाइड को बनाते वक्त अगर हमने कोई एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पर डाले होते तो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है यहाँ पर। ओके, नाउ ये जनरली दिस नोट्स इज यूजफुल फॉर द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाला है उसके लिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल इजीली मिलता है नोट्स के थ्रू। नाउ रीडिंग व्यू, यूजिंग दिस व्यू यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड शो दैट fits within a window। You can use this view when you run the presentation on your computer, not showing it to the audience। और एक व्यू है रीडिंग व्यू जिसमें जब हम खुद प्रेजेंटेशन को रीड कर रहे होते हैं व्हेन एट टाइम ऑफ रीडिंग आवर सेल्फ, तो वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन को रीड करने के लिए ये भी यूज़ करेंगे। ओके, फॉर आवर सेल्फ वी विल यूज़ दिस रीडिंग व्यू। Now the last is slideshow view. This view is used when you deliver our presentation to the audience। ये स्लाइड शो जब यूज़ करेंगे जब हम ऑडियंस को हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाले बताने वाले हैं। नाउ टू व्यू स्लाइड शो क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार। और एक स्टेटस बार पर यहाँ पर ये है, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। यहाँ पर एक है ऑप्शन है स्लाइड शो। ये स्लाइड शो पे प्रेजेंट करने से यहाँ पर जितने भी हमारे स्लाइड्स इस तरीके से ऑडियंस को
यहाँ पर शो होंगे। एक तो यहाँ से स्टार्ट हो गई स्लाइड नंबर 1, 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5. Now select the slideshow tab in, or you can also start the slideshow from the slideshow tab and click on the from beginning or from current slideshow button. इस स्लाइड शो टैब पर जाना है हमें, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल व्यू कर देता हूँ, स्लाइड शो पर जाते हैं। दिस टू ऑप्शन इज अवेलेबल। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्लाइड शो जो स्लाइड नंबर 1 है उससे यहाँ पर स्टार्ट होगा, या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इफ़ विल सेलेक्ट स्लाइड नंबर 3 देन एंड फ्रॉम द स्लाइड शो टैब वी विल गो थ्रू विद दिस ऑप्शन फ्रॉम करंट स्लाइड, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड स्लाइड। हमने स्लाइड नंबर 3 ये वाली स्लाइड सेलेक्ट की है तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5 एंड। ओके, इन दिस वे विल यूज दिस ऑप्शन। उसके बाद और एक ऑप्शन है प्रेस F5 की टू व्यू द स्लाइड शो, और एक कीबोर्ड का शॉर्टकट की है F5 की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। So in this way we had completed the chapter number 2. If you are having any question, please ask me. Thank you.